Now, ladies and gentlemen, every institution shines brighter when dedication is recognized, effort is appreciated, and excellence is celebrated. We now move to one of the most awaited segments of today's program, the prize distribution ceremony, where we honor achievers who have brought pride to the school through academics, sports, and leadership. To make this proud moment even more special, may I request our esteemed chief guest, Sir Abdul Alim, to kindly grace the stage and confer the prizes upon our achievers. Along with our honorable chief guest, may I also request our respected founder manager sir and principal sir, the guiding forces and visionary leaders of our institution. To kindly join us on academic success is not just about marks, it is about perseverance. Academic success is not just about marks, it is about perseverance, discipline, and consistent hard work. First, we proudly acknowledge the top 3 position holders of Class 10 for their outstanding academic performance. May I request our respected dignitaries to kindly come forward and felicitate. Before we proceed further, we would like to respectfully mention that the cash awards for our Class 10 and Class 12 toppers have already been presented earlier as token of appreciation and encouragement. आइए इन चमकते चेहरों के साथ हम भी ये यकीन करें कि मेहनत का सफर कभी बेकार नहीं जाता। आज इस मंच पर सिर्फ इनाम नहीं, सफर की हर थकान को इज्जत मिल रही है। वो सुबह जो जल्दी आई, वो रात जो देर तक जागी, आज उन सब लम्हों की कीमत अदा हो रही है। With these lines, I would like to first start. We proudly acknowledge the top 3 position holders of Class 10 for their outstanding academic performance. May I now request our Class 10 toppers along with their proud parents to kindly come forward as their names are announced. First position was secured by Aliza Ahmed with an outstanding 98.6%. Second position was backed by Ashraf, securing an impressive 97.8%. Third position holder was Faz Khan with a remarkable 97%. हर मुस्कुराहट के पीछे छुपी एक कहानी है, जहां हार भी सीख बनी और जीत भी इम्तिहान है। Moving ahead, we now honor the top 3 position holders of Class 12 who have shown remarkable determination during one of the most crucial stages of their academic journey. We invite the following students and their respected parents to receive their certificates and medals. First position was clinched by Palak Rajput, securing 95.2%. Second position was backed by Al-Shifa with an excellent 92.6%. खामोशी से मेहनत करना आसान नहीं होता, बिना शोर के आगे बढ़ना हर किसी से नहीं होता। Moving ahead, we now honor the top 3 position holders of Class 12 who have shown remarkable determination during one of the most crucial stages of their academic journey. We invite the following students and their respected parents to receive their certificates and medals. First position was clinched by Palak Rajput, securing 95.2%. Second position was backed by Al-Shifa with an excellent 92.6%. And third position was achieved by Sumaya Siddiqui with 91.8%. खामोशी से मेहनत करना आसान नहीं होता, बिना शोर के आगे बढ़ना हर किसी से नहीं होता, मगर जब खुद पर यकीन रख कर चलता रहे, आज वही अपनी पहचान खुद लिखता रहे।
prestigious moments of today's annual function. The Khatib-ur-Rahman presentation of the Khatib-ur-Rahman Memorial Award along with the cash prize instituted to honor academic excellence and dedication of class 10 and 12 toppers. Now, I would like to request Mrs. Sabia Khatib ma'am along with her son to join the dignitaries on the stage. And I would also like to request all the dignitaries to present Khatib-ur-Rahman Memorial Award to our respected position holder. ये इनाम मंजिल का आखिरी निशान नहीं, ये तो एक नया कदम है, एक नई पहलू की शुरुआत। कल की राह लंबी है, इम्तिहान और भी होंगे, मगर आज की ये जीत देगी हर मुश्किल का जवाब। Now, I would like to request all the dignitaries to present Khatib-ur-Rahman Memorial Award to Aliza of Class 10 for her outstanding performance. Now, I would like to request to all the dignitaries to present Khatib-ur-Rahman Memorial Award to Palak Rajput of Class 12 for her outstanding performance. आज जिन हाथों में इनाम है, उन हाथों में जिम्मेदारी भी है। अपनी कामयाबी को गुरूर नहीं, बल्कि दूसरों के लिए राह बनाना भी है। Now, I would like to request Mr. Ehtisham Shamsi to please come forward and present the Best Student Award to our deserving achievers. Let us give a big round of applause to Palak Rajput of Class 12 and Aliza Ahmed of Class 10 for their dedication, perseverance and all-round excellence. इस मंच से उतरकर जब जिंदगी फिर पुकारे तो याद रखना, मेहनत कभी जाया नहीं जाती और सच्ची कोशिश हमेशा रंग लाती है। आइए इन चमकते चेहरों के साथ हम भी ये यकीन करें कि मेहनत का सफर कभी बेकार नहीं जाता। की पहचान नहीं, ये मेहनत, सब्र और यकीन का एहतराम है। जिन ख्वाबों ने आंखों में जगना सीखा, आज वही ख्वाब इनाम बनकर सामने आए। खामोश मेहनत जब रंग लाई, कामयाबी को चलकर करीब आई। Now it's time to honor our two sports warriors who showcase skill, discipline and indomitable fighting spirit on a prestigious platform. It gives us immense pride to announce that our under-17 boys hockey team participated in the prestigious CBSE National Hockey Tournament and displayed outstanding skills and secured the second runner-up position. May I request the members of our under-17 boys hockey team along with their coach to kindly come forward and receive the honor. I request our respected dignitaries to felicitate the members and their coach for their commendable achievement. This achievement reflects the dedication of our players, the expert guidance of their coach, and the unwavering support of the school. ये मंजिल का अंजाम नहीं, एक नया आगाज है, जहां से बेहतर कल की राह खुलती है।
सबको सलाम और कामयाबी को इज्जत देते हैं। आज जिन हाथों में इनाम है उन हाथों में जिम्मेदारी भी है। अपनी कामयाबी को गुरूर नहीं बल्कि दूसरों के लिए राह बनाना भी है। इस मंच से उतरकर जब जिंदगी फिर पुकारे तो याद रखना, मेहनत कभी जाया नहीं जाती और सच्ची कोशिश हमेशा रंग लाती है। Dear audience, throughout the year, students across houses displayed enthusiasm, leadership, discipline, and active participation in academics, sports, and co-curricular activities. And it gives me great pleasure to announce that the title of Best House of the Year has been proudly secured by our Yellow House. Guided with dedication and commitment by their respective house moderators, Yellow House has shown remarkable consistency and teamwork throughout the academic year. May I request our chief guest, Professor Abdul Aleem sir, to honor our Yellow House moderators and house captains with a rolling trophy. Dear Yellow House moderators and captains, your outstanding efforts, active participation and dedication throughout the academic years 2024 and 25 strengthened team spirit and school culture. Your commitment has truly made a difference. Well done, and keep leading by setting an example. With this, we conclude the prize distribution ceremony. Each award presented today is a reminder that hard work never goes unnoticed and excellence always finds its reward. Let us once again congratulate all the achievers and wish them continued success in all their future endeavors. Honoring excellence is not just a tradition, it is an affirmation of our belief that great minds inspire young hearts. As a mark of our deep respect and appreciation, the founder manager sir, Mr. Shujaur Rahman Shamsi, will now present a shawl and a memento to our honorable chief guest, Professor Abdul Aleem sir, for his exemplary contributions to literature, research and academic leadership. Sir, this memento is a humble mark of our respect and gratitude for your remarkable journey, a journey dedicated to scholarship, service and shaping generations of learners. Ladies and gentlemen, now I would like to request Dr. Hassan Ahmad Nizami sir to come up on stage and to receive a moment of honor and gratitude as we acknowledge a respected member of our school managing committee who has also rendered distinguished services as the ex-chairman of the Fakhruddin Ali Ahmed Committee. अनस उबैद साहब, प्रिंसिपल सनी वे स्कूल, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, मोहतरम असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। सबसे पहले
इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भाई अनस उबैद इकबाल साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जिस अंदाज से मुझे यहाँ बुलाया, जबकि मैं कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी 2 दिन में मैं आने में कासिर होता, मगर अनस उबैद इकबाल साहब की मोहब्बत, शफकत कहिए शुजाउर रहमान साहब की, कि मुझे यहाँ आने पर जिस खुशी का इजहार हो रहा है, मैं तहे दिल से आप सबका और मैनेजमेंट कमेटी का और प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं स्कूल का जो एनुअल फंक्शन हुआ है उसके बारे में 2 मिनट बात करूँगा कि जिस मयारी प्रोग्राम को मैंने देखा है, और इत्तेफाक ये है कि नेक में मेंबर होने की वजह से, नेक कमेटी का मेंबर होने की वजह से, या हमारे भी 7-8 स्कूल चलते हैं उसमें मुलव्विस होने की वजह से हमने बहुत एनुअल प्रोग्राम देखे हैं, और कल्चर प्रोग्राम भी इत्तेफाक से 2 साल से जब से नेक कमेटी का मेंबर हुआ हूँ पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला। उससे पहले बहैसियत एक्सपर्ट भी जाने का मौका मिला। मैं कोई इसमें मतलब वो नहीं कह रहा सामने अनस उबैद इकबाल साहब के कि जितने भी मैंने प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट के देखे हैं, मगर इतना इन्वॉल्वमेंट शायद मैंने स्टूडेंट का और टीचर का पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने कहीं नहीं देखा। कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे मैंने, और जबकि नेक में आप जाइए तो बेस्ट करने की कोशिश करता है इदारा, जो इंस्टीट्यूशन है पीर कमेटी के सामने, वो एक से एक अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। मगर इस प्रोग्राम में जितना इन्वॉल्वमेंट, यहाँ 50-50 स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट, और 10 से लेकर 50 जो मैंने गिने थे, 50 स्टूडेंट मौजूद थे। मैंने पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया है। 2 सालों में कोई स्टेट आप बता दीजिए जिसका जहाँ मेरे जाने का मौका न मिला हो। मगर इस तरह के प्रोग्रामों में, और एक मैसेज, एक पैगाम, जैसे 1857 की आज़ादी के बारे में कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरती से इस प्रोग्राम को इन्होंने जो आयोजन किया है, क्योंकि मैं हिंदी का एक तालिब इल्म होने के नाते मुझे एक चीज़ों का और एक सती जो कहानी का नाटक था उस पर जो उसका थीम था, और एक सूचना क्रांति जो आजकल सोशल मीडिया की बात हो रही है, जो भी प्रोग्राम थे उसमें एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक पैगाम भी दिया गया था। एक खाली कहते हैं ना मनोरंजन के लिए, बल्कि इंटरटेनमेंट नहीं था, उसमें एक संदेश भी था। और संदेश को किस तरह से इतनी बड़ी टीम के साथ तैयार करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए असातिज़ा इकराम और इनकी टीम और अनस उबैद इकबाल साहब की जो काविशें हैं, मैं दिल से तायीद करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से जो स्कूल की जो मैंने परफॉर्मेंस देखी है, मेरा दिल चाहा जो आपका टॉपर होगा, हर साल मेरी तरफ से 5,000 रुपये उसको जो हाई स्कूल का टॉपर होगा, और 5,000 रुपये जो इंटरमीडिएट का टॉपर होगा, मैं इंशाल्लाह आपको चेक भेज दिया करूँगा या अभी दे जाऊँगा। जो इस साल का टॉपर होगा वो 5,000 रुपये स्कूल की परफॉर्मेंस देखकर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ और भी करूँ, मैं और भी करूँगा। शायद मैं भी स्कूलों से जुड़ा हुआ हूँ, हमारी भी एक एजुकेशन सोसाइटी है, वो हम स्कूल चला रहे हैं, मगर हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं आज इस स्कूल से। और वो ये सीखा है कि किस तरह से प्रोग्राम को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। पूरी टीम, इस टीचर्स की टीम को देखकर, और 5,000 रुपये मेरी तरफ से असातिज़ा इकराम को हर साल मैं भेज दिया करूँगा, जो एक मतलब अवार्ड के तौर पर, कि जो मुझे खुशी हुई है वो मैं मतलब सोच नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें हमें भी मिलती हैं, बहुत सारे मूवमेंट मिलते हैं, आपने जो मूवमेंट दिया है वो भी मैं बहुत संभाल कर रखूँगा, कि जिस तरह से सनी वे स्कूल को देखकर मेरी खुशी हुई है। अगर शायद मैं ना आ पाता तो मुझे बहुत सारी जिसे कहना चाहिए, मैं वो महसूस करता कि मैंने कुछ खोया है। यहाँ आकर जो आपने मुझे इज्जत दी है, बल्कि इज्जत से ज़्यादा जो मैंने देखा है उसके लिए मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। और इन बच्चों को जिनको इनामात मिले हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और बहुत सारी दुआएं हैं इस स्कूल के लिए भी कि ये इदारा और शुजाउर रहमान साहब की सरपरस्ती में और अनस उबैद इकबाल साहब की लगन और मेहनत से इदारा अपना और नाम रोशन करे। अहमद मरवा साहिबा, मैं पूरी टीम को कह रहा हूँ, जो खान साहब इंचार्ज हैं, मुझे नाम नहीं पता, असल में 2 लोगों का नाम मुझे पता है, निज़ामी साहब भी मौजूद हैं। ज़ाहिर है पूरी एक टीम होती है किसी काम को करने के लिए,
बहुत बड़ा इदारा तभी चलता है जब टीम स्पिरिट हो। हम भी जाते हैं जब नेक कमेटी में, तो हम अकेले नहीं होते, मैं मेंबर कोऑर्डिनेटर होता हूँ, चेयरमैन जो है उसका वाइस चांसलर होगा, और जो नॉर्मल प्रोफेसर होगा वो मेंबर होगा। तो ज़ाहिर है 3 की टीम रहती है, और जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो 7 की टीम रहती है। तो बिना टीम के तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना कहते हैं ना, बाहर नहीं फोड़ सकता। तो ज़ाहिर है आपके पास टीम है, पूरी टीम है, तभी आपने इस इदारे को यहाँ से शुजाउर रहमान साहब की सरपरस्ती में, जो आपने सैयद हामिद साहब का जिक्र किया, मैं भी उनका कायल हूँ, मैं भी उन्हीं के ज़माने का स्टूडेंट हूँ। जो कुछ मैंने सीखा है सैयद हामिद साहब से सीखा है, हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी में जा जाकर वहाँ पर टाइम देकर। तो मैं इस इदारे के लिए दुआ गो हूँ। और बच्चों, आपसे सिर्फ 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ, लंबी तकरीर का वक्त नहीं है, बहुत सारी तकरीरें करने का मौका मिलता है, तकरीर करना मेरी आदत में नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ें जो एक है, तालीम की अहमियत सभी जानते हैं, तालीम से आदमी एक अच्छा इंसान बनता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं अगर आप तालीम में आला मुकाम हासिल करें, एक हिंदी का उस्ताद होने के नाते, मैं बड़ी उसमें नहीं कह रहा आपसे, मैंने IAS के एग्जामिनर से लेकर UPSC में 10वीं बार मेरा जाना होता है। लोग कहते हैं कि भेदभाव होता है, मैं कहता हूँ आप एक्सेल कीजिए। अगर आप एक्सेल करेंगे तो कोई भी आपको खींच नहीं पाएगा पीछे। आप अगर साथ दौड़े, सैयद हामिद साहब कहा करते थे कि अक़लियत को अक्सरियत से ज़्यादा मेहनत करना होगी, तब आप उनके साथ दौड़ पाएंगे। शिकायत शिकस्त का दूसरा नाम है। अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं। जस्टिस सुहेल सिद्दीकी साहब जो माइनॉरिटी एजुकेशनल कमीशन के चेयरमैन थे, 12 तकरीर में कहा करते थे कि आप, हमें शिकायत की आदत हो गई है। शिकायत वो लोग करते हैं जो शिकस्त खाए लोग होते हैं, जो बहादुर कौम है, बहादुर लोग हैं, मेहनती लोग हैं, वो शिकायत नहीं करते बल्कि मेहनत से मकाम बनाते हैं। तो बच्चों, आज मैंने यहाँ फ़ोटो देखा था शुजाउर रहमान साहब के साथ, साबिक़ सदरी जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम का। अलीगढ़ जब वो कन्वोकेशन एड्रेस किया था तो उन्होंने वो हमेशा कहा करते थे कि आप ख्वाब देखिए, मगर दिन में ख्वाब देखिए, है ना, वो नींद के ख्वाब मत देखिए, बल्कि दिन में ख्वाब देखिए और कुर्बान कीजिए उस नींद को, उस ख्वाब की तामीर हासिल करने के लिए। तो मैंने कुछ 2-3 बातें कही। एक तो ये कि जो आप ख्वाब देखें वो दिन वाले ख्वाब देखें जिस पर आप कुर्बान करें नींद को, और दिन में उसके लिए पूरी जद्दोजहद और कोशिश करें। उसके लिए क्या करना होगा, एक सच्चाई से, ईमानदारी से, लगन से, और जो आजकल का जो सूचना क्रांति है, ये सोशल मीडिया है, जो ये प्रोग्राम दिखाया बहुत ही सबक आमेज था, वो हमारे लिए भी, तालिब इल्मों के लिए भी, कि किस तरह से अपना वक्त ज़ाया करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आप सोशल मीडिया के थ्रू वक्त ज़ाया न करें, बल्कि उससे जो AI आई है, AI के ज़रिए से आप कितना इल्म हासिल कर सकते हैं। पहले बड़ी बड़ी मोटी किताबें आप देखा करते थे, तो आप पॉजिटिव बात यह है कि आप इंटरनेट के थ्रू आप डालिए कि 5 मिनट की हमें इस पर ये मैटर चाहिए, 5 मिनट का मिल जाएगा। पहले हम लाइब्रेरी में जाया करते थे। तो जिस चीज़ की आप निगेटिविटी को देख रहे हैं, उसकी पॉजिटिविटी को भी देखिए कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो इसलिए लगन के साथ इस सोशल मीडिया में कम से कम वक्त लगाकर AI के थ्रू या गूगल के थ्रू या जो भी है वो मदद के थ्रू आप मदद ले सकते हैं, तो वो मदद हासिल कीजिए। और मेहनत से 2 घंटे कम से कम, मैंने ज़िंदगी में ये तय किया कि मैं दोपहर में सोऊंगा नहीं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 9 साल रहा, और 9 साल के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया RPSC में। जहाँ गया पहली बार सिलेक्शन हुआ, मतलब कमीशन में गया वहाँ पहली बार, अलीगढ़ में पहली बार, जहाँ भी गए मतलब ये है कि पहली बार में सिलेक्शन हुआ। तो मुझे यकीन है, मैं तो इसमें यकीन करता हूँ कि मेहनत आदमी को कामयाबी दिलाती है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में हो। हिंदी का प्रोफेसर होते हुए लोग ताज्जुब करते हैं कि आप नेक में कैसे जाते हैं। नेक में कैसे, मुझे पूरा उबूर है अपनी ज़बान पर, और मैं अब उसके बाद भी मैंने बताया कि जब मेरा अभी वाइस चांसलर के लिए था जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, इंटरेक्शन हुआ मिनिस्ट्री में कमेटी एक्सपर्ट के सामने, तो मैंने हिंदुस्तानी में ही पेश किया अपना आइडिया, जो मेरा मिशन और विज़न था। मैंने कहा जो मेरी मादरी ज़बान है, लोगों ने 143 लोग थे, मैंने हिंदुस्तानी में पेश किया, और आपकी दुआ से नंबर 1 पर था मैं उसके पैनल पर, जामिया के पैनल पर। मगर हुकूमत से थोड़ा सा, जिसे कहना चाहिए जो भी वजह रही हो, 5 में नंबर 1 पर था, टिक नहीं हो पाया प्रेसिडेंट क्या, जो भी वजह रही हो। मगर मुझे अपने पर पूरा, जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस, कि जो है अपनी ज़बान पर पूरा एक्सेल कीजिए, चाहे अंग्रेज़ी में कीजिए, हिंदी में कीजिए, उर्दू में कीजिए। IAS में तो आप किसी भी ज़बान में लिख सकते हैं, 22 ज़बान में किसी भी। सैयद अशरफ अली ने उर्दू में लिखकर
IRS हुए थे, सैयद अफजल हुसैन IAS IPS बने थे। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब तो NAP में उस ड्राफ्ट कमेटी का भी इत्तफाक से मेंबर रहा हूँ मैं। तो उसमें तो ये है कि आपको अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना है और आगे चलकर जो भी ज़बान में को आपको डेवलप करें आप उसमें हासिल करें। जब क्योंकि जो आदमी मादरी ज़बान में जो उसकी कहते हैं ना जो समझ है वो मादरी ज़बान में बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। इसलिए NAP में आपने देखा होगा कि अब प्राइमरी एजुकेशन को हर ज़बान में दिया जाएगा, तमिलनाडु में तमिल में, अंग्रेज़ी, जहाँ भी हो किसी भी तरह से अपनी मादरी ज़बान में। तो किसी भी उसमें आप ज़बान में आप एक्सेल हासिल कर सकते हैं, मकाम हासिल करें तो आपको आला मकाम हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरी आपसे यही अपील है बच्चों, और आपके जो यहाँ पर बैठे हुए हैं गार्जियन बैठे हुए हैं, कि बच्चों को सही तरह से एक तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर कि आप पूरी तरह से मेहनत करके, अक्सर हम लोग शिकायत करते रहते हैं हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती, नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती, वो तो नौकरी किसी के यहाँ नहीं है, सरकारी नौकरियाँ। प्राइवेट सेक्टर में आपकी काबिलियत पर, नॉलेज पर तकर्रुर होना है। तो इस चीज़ के लिए अपने गार्जियन भी, टीचर्स भी और बच्चों के अंदर भी वो आप जज्बा पैदा कीजिए कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहे। एक जो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं ना हम बच्चों में पढ़ते वक्त, अभी आरिफ साहब हैं जो IAS है आसाम कैडर के, उन्होंने प्री गोल्ड प्रोग्राम शुरू किया है हर जगह जगह। आप कहेंगे तो आपके यहाँ भी प्रोग्राम हम दिला देंगे कि बच्चों के अंदर पहले से ही किस तरह से अपने फ्यूचर की तैयारी करें और फ्यूचर को किस तरह से। आरिफ साहब हैं चीफ सेक्रेटरी आसाम के, अभी उन्होंने दिल्ली में हेडक्वार्टर बना रखा है, वो फ्री सर्विस दे रहे हैं लोगों को और पूरी टीम बना दी है उन्होंने मुख्तलिफ IAS IPS और चीफ जस्टिस कि किस तरह से बच्चों की काउंसलिंग करें कि उनका मुस्तकबिल कैसे सुधरे। तो इसी तरह से आप भी बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं अनस साहब वो तो है ही, साथ में उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप करें। जो आपने प्रोग्राम में दिखाया बच्चों में कॉन्फिडेंस है और फ्यूचर का भी इनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो और उसके लिए लगन मेहनत जो है वो उसके अंदर वो जज्बा रहे। तो स्कूल भी और बच्चे भी तरक्की करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ स्कूल के लिए भी मेरी दुआ है और अनस साहब आपको और आपकी टीम को और आली जनाब हाजी शुजाउर रहमान साहब की दुआएं और उनकी लगन, उनकी मेहनत जो उन्होंने अपने बताया, सही हामिद साहब से राब्ता जब्त जो रहा है, अल्लाह ताला इस स्कूल को और तरक्की दे, इस इदारे को और बड़ा इदारा बने। इन्हीं दुआओं के साथ खुदा हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद। Thank you, respected Professor Abdul Aleem sir, for your insightful message. Your motivating words have made this moment even more special and memorable for our young achievers. Now, it's time for our Qawwali. Qawwali that comes with music, mischief, and a whole lot of friendly teasing. Today, the talented students of class 9 and 11 presenting the lively, musical, and absolutely entertaining Qawwali by our students. हेलो हेलो अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइए। हाल क्या है पढ़ाई का पूछो न तुम, हाल क्या है पढ़ाई का पूछो न तुम, उस पे इंस्टा का आना सब ढा गया। हाल क्या है पढ़ाई का पूछो न तुम, हाल क्या है पढ़ाई का पूछो न तुम, उस पे इंस्टा का आना सब ढा गया, उस पे इंस्टा का आना सब ढा गया। व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टा क्या ये कम न थे, व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टा क्या ये कम न थे, उसमें स्नैपचैट चलाना सब ढा गया। व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टा क्या ये कम न थे,
अर्ज किया है, जरा मुलाहिजा फरमाइए। काम करना कुछ चाहती नहीं है, बैठना चाहे खाली। काम करना कुछ चाहती नहीं है, बैठना चाहे खाली। इन सब बैठे बैठे देखो वजन हो गया भारी। संडे में इनकी मम्मी चिल्लाती रहे, संडे में इनकी मम्मी चिल्लाती रहे। झाड़ू पोछा सफाई को बोल दे, झाड़ू पोछा सफाई को बोल दे। पैर दर्द का बहाना बना कर ये, पैर दर्द का बहाना बना कर ये। सुबह शाम ये हिंसा चलाती रहे, सुबह शाम ये हिंसा चलाती रहे। हाल क्या है पढ़ाई का पूछो ना तुम, हाल क्या है पढ़ाई का पूछो ना तुम। उसने हिंसा कहाना गजब ढा गया, उसने हिंसा कहाना गजब ढा गया। अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। शो ऑफ की ये दुकान है, झूठी की शान है। शो ऑफ की ये दुकान है, झूठी की शान है। दोस्त की बुलेट पर फोटो डालकर खुद को समझते बड़ा महान है। दिखावा इन लड़कों का तौबा बड़ा, दिखावा इन लड़कों का तौबा बड़ा। झूठे झूठे स्टेटस लगाते हैं ये, झूठे झूठे स्टेटस लगाते हैं ये। चाहे घर में हो डंडे ये खाते हो सब, चाहे घर में हो डंडे ये खाते हो सब। फिर भी स्टेटस ये कूल दिखाते हैं सब, फिर भी स्टेटस ये कूल दिखाते हैं सब। हाल क्या है पढ़ाई का पूछो ना तुम, हाल क्या है पढ़ाई का पूछो ना तुम। उसने हिंसा कहाना गजब ढा गया, उसने हिंसा कहाना गजब ढा गया। अब जरा इनके सेल्फी लेने के अंदाज पर गौर फरमाइए। मुंह टेढ़ा करके लेती है जब सेल्फियां, मुंह टेढ़ा करके लेती है जब सेल्फियां। फिर बैठे करे हैं ये जेलीपियां, फिर बैठे करे हैं ये जेलीपियां। एक डीपी में आंख का ढेला लगाए, एक डीपी में आंख का ढेला लगाए। एक डीपी में सैंडल ये अपना दिखाए, एक डीपी में सैंडल ये अपना दिखाए। हाल क्या है पढ़ाई का पूछो ना तुम, हाल क्या है पढ़ाई का पूछो ना तुम। उसने हिंसा कहाना गजब ढा गया, उसने हिंसा कहाना गजब ढा गया। मम्मी दे लाख
चाहे ये दूसरों की कारस्तानियाँ, देखना चाहे ये दूसरों की कारस्तानियाँ। किसने किसको है फॉलो किया इंस्टा पे, किसने किसको है फॉलो किया इंस्टा पे, किसने किसके है पोस्ट पे कमेंट है किया, किसने किसके है पोस्ट पे कमेंट है किया। आज क्या है पढ़ाई का पूछो न तुम, आज क्या है पढ़ाई का पूछो न तुम। उसके इंस्टा का आना गजब ढा गया, उसके इंस्टा का आना गजब ढा गया। अब जरा इधर भी तो सुनिए। लड़की बनने का शौक ये रखते सभी, लड़की बनने का शौक ये रखते सभी। लड़की के नाम से ये बनाए आईडियाँ, लड़की के नाम से ये बनाए आईडियाँ। फेक आईडी बनाते ये लड़के सभी, फेक आईडी बनाते ये लड़के सभी। एंजल प्रिया है नाम उसका रखते सभी, एंजल प्रिया है नाम उसका रखते सभी। आज क्या है पढ़ाई का पूछो न तुम, आज क्या है पढ़ाई का पूछो न तुम। उसके इंस्टा का आना गजब ढा गया, उसके इंस्टा का आना गजब ढा गया। अब जरा और बताइए इनके फंक्शन में मिलने के अंदाज पर। किसी फंक्शन में जब ये लड़कियां मिले, किसी फंक्शन में जब ये लड़कियां मिले, बस फोटो पे फोटो ये खींचती रहे, बस फोटो पे फोटो ये खींचती रहे। कभी इकरा के ये रील बनाए, कभी इकरा के ये रील बनाए, कभी झुमका हिला के ये स्लो बनाए, कभी झुमका हिला के ये स्लो बनाए। आज क्या है पढ़ाई का पूछो न तुम, आज
समझना आई थी जो, वो बात समझ अब आई है। ये सोशल मीडिया है कुछ नहीं, सारी ये तबाही है। तबाही है, तबाही है। बस बहुत हो गया अब अकलवा गई, बस बहुत हो गया अब अकलवा गई। सारी ठोकर खाकर अब समझ आ गई, सारी ठोकर खाकर अब समझ आ गई। अपना करियर बनाना तुम चाहते अगर, अपना करियर बनाना तुम चाहते अगर, अच्छी जगह तुम्हें वक्त लगाना होगा, अच्छी जगह तुम्हें वक्त लगाना होगा। नाम होगा तुम्हारा भी एक दिन बड़ा, नाम होगा तुम्हारा भी एक दिन बड़ा। इसका स्नैपचैट तुम्हें कम चलाना होगा, इसका स्नैपचैट तुम्हें कम चलाना होगा। अपने देश का करेंगे बड़ा
Feeling gratitude and expressing it not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Respected chief guest, distinguished guests, dear parents, teachers and students, first and foremost, on behalf of a school, I extend my most sincere thanks to the Almighty Allah for making today's event a resounding success. As we come to the conclusion of today's annual function, I consider it my privilege to express my gratitude to all of you for being with us. I extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Dr. Abdul Alim, for gracing this occasion and also for your inspiring words that have truly motivated our students and staff. Sir, indeed, your presence has added great value and dignity to this celebration. I mention my deep sense of gratitude to our respected founder manager S.R. Shamsi sir, co-founder Mrs. Nasma Shuja Shamsi ma'am and principal Mr. Ubaid Anas for their unstinted support, vision and commitment. I like to convey my thanks to the principals from different schools of the city, distinguished guests, members of the press and media for being a part of this celebration and encouraging our students. I thank Mrs. and Mr. Ihtisham Shamsi, Dr. Faraz Mahmood, Dr. Rubab Anjum, Dr. Hassan Ahmed Nizami sir for sparing their precious time with us. Without the inspiration, drive and support that all parents have given us, today we might not be what we are today. I thank all the parents for being present in this chilling evening. Your encouragement always helps us to carry out events like this. A heartfelt address to our beloved teachers. Thank you all of you for being a bedrock of strength that propels our students forward. Your passion for inspiring, nurturing young minds is truly amazing. To our beloved students, you are the heartbeat of our school. Your dedication, creativity, and your enthusiasm has brought life to this celebration. We are immensely proud of you for your performance. We also express heartfelt thanks to all our supporting staff, well-wishers of our school, and all those who have contributed to the success of the event directly or indirectly. I once again thank you all and wish you a pleasant evening ahead. Thank you. Thank you, respected ma'am, for your gracious words of appreciation and encouragement. With this vote of thanks, we come to the formal conclusion of today's annual function. What began as a simple vision has grown into something truly remarkable, filled with love, laughter, and joy. These cherished moments will remain etched in our hearts, and as we move forward to build an extraordinary future together. We now request our audience to rise and join us in singing the national anthem. Please stand as we pay respect to our very land.